Hello friends. So in our last class we studied the first long sum of this chapter, that is admission of a partner, right? जिसमें हमने क्या देखा कि भाई whenever a new partner is entering into a firm तो हमें उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। हमने उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स देखे, गुडविल की वैल्यूएशन देखी, गुडविल की ट्रीटमेंट देखी, राइट? सो वी डिड ऑल दोज थिंग्स, राइट? अब we are now moving further with our next question, that is your question number 9, page number 208 of your textbook. What does this question says? Let's first understand the question. Asta and Ahna are partners in a firm sharing as on 31st March 17, and the balance sheet is as under. Capital accounts are given, workman compensation fund is there, investment fluctuation fund is there, provident fund is there, bad debt reserve, creditors, bills payable. Remember friends, I have not said even once that provident fund and bad debt reserves are फ्री रिजर्व्स, राइट? सो प्रोविडेंट फंड एंड बेड डेट रिजर्व कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं, एज इट इज़ नॉट एट ऑल योर फ्री रिजर्व, राइट? मैंने आपको स्टेप्स लिखवाते टाइम भी कभी एग्जाम्पल में भी ये दोनों नहीं लिखवाए हैं, राइट? Then assets, goodwill, land and building, machinery, investments, debtors, stock, cash, advertisement, campaign expenditure, profit and loss account, right? ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट में दे के रखी है. Now let's see हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है. मेन फोकस एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे रखना है, करेक्ट? They admitted Sonu as a new partner as on 1/4/17 on the following conditions. Sonu will bring 80,000 as her capital and 7,200 as her share of goodwill in cash. 80,000 as her capital and 7,200 as her share of goodwill in cash, right? 7,200 वो goodwill का share कैश में लेके आई है, ऐसा हमें बोला गया है, राइट? देन न्यू PSRS 4:3:3. Goodwill is to be valued at 40,000. The claim of workman compensation is accepted at 3,200 rupees. Ahna will take over the investments at 19,200. We'll understand all these things very carefully. Don't worry. सिर्फ हम अभी पढ़ रहे हैं सम को, उसके बाद we'll understand each and every adjustments properly with steps. Then accrued interest on investments is 2,400 is not recorded, that we are supposed to record. Then accepted bills payable of rupees 2,000 which was drawn by creditors is not recorded. Creditors ने bills payable draw कर दिया है, जो record करना रह गया है, so we will record the same. Then book value of land and building is 20% less than the market value. 20% less than the market value, fine. Then out of insurance premium paid 4,800 is for next year, fine. Prepare necessary accounts and balance sheet after admission. So they didn't mention anything रिगार्डिंग वॉट अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, राइट? वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता के रखा हुआ है कि हमें कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. सो यू ऑल आर क्लियर विद द सेम कि कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश इन बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. ये चार चीज़ें हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, दैट वी ऑलरेडी नो, राइट? सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन बाय व्हाट. द वेरी फर्स्ट स्टेप टू बिगिन दिस क्वेश्चन वाज व्हाट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दैट इज आस्था एंड आहना का, दैट इज 76,000 एंड 48,400 वो लिखेंगे. एंड देन देयर इज अ कैश बैलेंस ऑफ 16,000 वो भी लिख लेंगे. सबसे पहले ये तीन बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ मुझे नाम लिखने बाकी रह गए हैं. आस्था, आहना and Sonu, right? Astha, Ahna and Sonu. So I have already prepared the same. Here I'll be writing opening balance, that is by balance. A minute. By balance brought down, it is how much? 76,000 and 48,400. 76,000 and 48,400. And cash balance is given how much? 16,000. So to balance
ब्रॉट डाउन इट इज 16,000, राइट। चलो ये हो गया अपना सबसे पहला स्टेप। देन सेकंड स्टेप वाज व्हाट, लुक एट द फ्री रिजर्व्स एंड फ्री रिजर्व्स जो भी बचती है वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट। बट इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फ्री रिजर्व्स के लिए कुछ उन लोगों ने दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो लेट्स लुक एट दैट फर्स्ट। क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4 आप देखें, द वर्कमैन क्लेम इज एक्सेप्टेड एट ₹3200। मैंने आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट सम में भी करवाया था। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अपने पास है, उसमें से कुछ क्लेम बन जाता है, दैट इज़ 3200 का क्लेम इन दिस केस इज देयर, तो वो तो मेरे लिए लायबिलिटी बन गई। इट इज़ नो लॉन्गर अ फ्री रिजर्व फॉर मी, राइट, बिकॉज वो क्या हो गया, मेरे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और बाकी जो बचेगा वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना है, इट इज़ 4800, राइट। 4800 का, आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर, 4800 का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है मेरे पास, राइट। और उसमें से 3200 की लायबिलिटी वर्कमैन एक्सीडेंट क्लेम हो गया, करेक्ट। तो मेरे पास कितना पैसा बचा, 1600 कैन आई से इट इज़ नाउ 1600 इज़ अ फ्री रिजर्व। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, आप शांति से समझो। हियर मेरे पास 4800 की वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, करेक्ट। और उसमें से मुझे ऐसा बोला गया है, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3200, मानी कि 3200 की लायबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो जितने पैसे बचेंगे उतने ही पैसे मुझे क्या करने हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, करेक्ट। तो हियर 4800 मेरा फंड था, उसमें से लायबिलिटी क्रिएट हो गई 3200 रुपीज़ की। सो नाउ द फंड दैट इज लेफ्ट इज 1600 रुपीज़ ओनली। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, तो यहाँ पे कहीं पे भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो एज नॉट गिवन, आई विल बी टेकिंग इट एज I'll be taking it as 1:1. ये हमें ऑलरेडी पता है कि whenever the old ratio or any ratio is not given, specified नहीं करा है, meaning thereby हमें उसको equal ratio में गिनना है, right? So ये concept you are already knowing, right? So ये 1600 को मैं क्या करूँगी, पार्टनर्स में 1:1 में, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द सेम by workman's compensation 800 and there is a liability which has been created, right? 4800 में से 3200 की liability create हुई, तो उसकी भी मुझे इफेक्ट देनी पड़ेगी, करेक्ट। सो आई विल बी राइटिंग इट ओवर हियर, वर्कमैन एक्सीडेंट क्लेम दैट इज 3200, राइट। सी दोनों चीज़ें साथ में करनी है, एक भी चीज़ रह गई लिखनी तो इट विल क्रिएट अ ट्रबल, बाद में जाके बैलेंस शीट विल नेवर एवर टैली, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। देन Ahana will take over very good adjustment is this. Ahana will take over the investments at ₹19,200, right? समझना आप अब अच्छे से, आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखाई दे रहा है, जस्ट लुक एट द बैलेंस शीट केयरफुली। क्या आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किस चीज़ के लिए होता है? वाई डू वी मेक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? सबसे पहली बात तो ये, सी व्हेनेवर वी आर हैविंग सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, तो हम ये सोच के उसके लिए एक अलग से फंड बनाते हैं विच इज़ नेम्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कि कल जाके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्लस माइनस हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, तो मैं ये फंड में से वो जो वैल्यू कम हुई इसका लॉस बेयर कर दूँगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मीनिंग क्या हुआ कि भाई मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी वैल्यू कल जाके अगर कम हो रही है, तो व्हाट विल आई डू, I will bear that loss from this fund.
मैं पहले से ही ये फंड क्रिएट करके चल रही हूँ कि आगे जाके अगर मुझे लॉस हो रहा है देन दैट लॉस विल बी बोर्न बाय दिस पर्टिकुलर फंड, राइट। इतना पहले क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पर्पस क्या है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस योर इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ ₹20,000, राइट। समझना आप अच्छे से। अब इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ ₹20,000, राइट। उसमें से ऐसा बोला गया है कि आहना इज टेकिंग इट एट 19,200। आहना लेके जा रही है इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रुपीस में? 19,200 में। कैन आई से मुझे 800 का लॉस हुआ? पहले ये लॉस कहाँ से आया इतना समझ में आया। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 20,000। आहना इज टेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट ओवर for ₹19,200, then can I say 800 rupee is my loss, correct। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्रेंड्स कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लेट मी राइट इट विथ अ डिफरेंट कलर पेन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉपरली। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेरे पास कितना है? 1600 है, करेक्ट। उसमें से मुझे लॉस कितना हुआ? 800 हुआ। तो माइनस मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 800 हुआ है, करेक्ट। कैन आई से अब जाके ये जो 800 बचे दैट विल बी माई फ्री रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन 1:1। मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप शांति से समझना। मेरे इन्वेस्टमेंट्स है 20,000 के। वन ऑफ द पार्टनर आहना इज टेकिंग ओवर दोज इन्वेस्टमेंट्स एट ₹19,200। Can I say the firm is having a loss of 800 in case of investment? क्योंकि 20,000 की वैल्यू थी, उसमें से एक पार्टनर लेके जा रहा है 19,200 में, मतलब 20,000 के इन्वेस्टमेंट्स को वो लेके जा रहा है कितने में? 19,200 में। तो 800 विल बी माई लॉस। फाइन, डन। अब ये लॉस मैं बॉन्ड कहाँ से करूँगी? ये लॉस को मैं बेयर कहाँ करवाऊँगी? तो आई हैव दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जिसका पर्पस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा। तो जो भी लॉस मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हो रहा है वो कहाँ से मैं कंपेंसेट करूँगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। आई हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स ऑफ ₹1600, जिसमें से 800 का लॉस हुआ मुझे, वो मैंने माइनस कर दिया। सो नाउ माई फ्री रिजर्व्स, क्योंकि अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स बचे नहीं हैं, तो ये जो फंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो पैसे रहे दैट विल बी ट्रीटेड एज माई फ्री रिजर्व, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, करेक्ट। यही चीज़ मैं आपको लिख के इसकी वैल्यू कैसे नलीफाई हो रही है वो करके दिखाऊंगी। देन आई रब इट, बट आई राइट इट वंस जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैन आई से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, समझना, हाँ, 20,000 के है, करेक्ट। माइनस आहना उसको 19,200 में लेके जा रही है, राइट। लॉस हो रहा है मेरा 800 का, करेक्ट। आहना लेके जा रही है, लॉस हो रहा है मेरा कितने का? 800 का। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेरे पास 1600 का है, जिसमें से मैं ये लॉस दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से ये लॉस मैं बेयर करने वाली हूँ। तो हियर आई विल बी राइटिंग लॉस ऑफ 800, करेक्ट। यहाँ पे 800 बाकी रह गए और यहाँ पे द वैल्यू विल बी 0, और यहाँ पे जो 800 बाकी रह गए that will be distributed among Asta and Ahna in 1:1, correct। So here also it will be 0. I hope you are clear with the same. So ultimately the effect will be nullified only. I am not supposed to write it over here, just आपके better understanding के लिए I have explained this, right? So let me cancel it out and then I'll be doing it, right? So ये मैंने यहाँ पे रब कर लिया है। We will be recording the same in our partners capital account by investment fluctuation fund account
800 रह गए थे, सो 400 एंड 400 1:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करा. देन this was very good example. You can pause it or you can just rewind the video and listen to it again, right? आप प्रॉपरली समझना, अच्छे से समझना, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये, राइट? चलो फिर ओके फाइन. एंड आहना ने 19,200 में टेक ओवर करा है, सो आई नीड टू राइट दैट एज वेल, राइट? सो लेट मी राइट इट ओवर हियर टू इन्वेस्टमेंट. सी, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हम लिखना रह जाए, लिखना भूल जाए, ये कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मिस्टेक की वजह से आपका पूरा सम जा सकता है. अगर ये गलती हो गई देन इट इज़ गॉन, देन यू नीड टू डू इट अगेन. रीचेक करने के लिए भी एक बार करना पड़ेगा. तो नेवर एवर डू सच मिस्टेक, राइट? चलो फिर और कुछ. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज डन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डन. देन हम स्टेप नंबर 2 में है, राइट? सो वी वोंट बी जस्ट लुकिंग एट अदर एडजस्टमेंट्स एंड विल फिनिश इट अप फटाफट से, राइट? ऐसा नहीं करना है. वी नीड टू सी क्या क्या चीज़ें हैं फंड्स में, फिक्टिशियस एसेट में, एंड देन वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट फर्स्ट एज पर आवर स्टेप्स. So in here on the liability side it is done. On the asset side there is advertisement, campaign expenditure and profit and loss account. Both we are supposed to distribute amongst the partners. So let's do it फटाफट से, वो आपको अच्छे से आता है, as we have done it in our last session. To advertisement campaign account, it is 3,200, so 1,600 and 1,600. To profit and loss account, it is 4,000 I suppose, so 2,000 and 2,000, right? Then ये हो गया स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में we are done with whatever given, right? Now our step number 3 was what? The very important thing, goodwill. चलो अब समझते हैं गुडविल को. क्या दिया हुआ है? सोनू will bring 80,000 as her capital, that is fine. 7,200 as her share of goodwill in cash. New PSR is 4:3:3, and the very third adjustment is saying what? Goodwill is to be valued at 40,000. Can I say firm की goodwill 40,000 है, right? अच्छे से समझना. I would like to take this 3 adjustments all together, right? So अच्छे से समझना, ये proper working के साथ I am explaining it, right? Can I say firm's goodwill? यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये firm's goodwill working note. Firm's goodwill is 40,000, correct? जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमने कहीं से बना के नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि भाई फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करनी है, हमें 40,000 वैल्यू करनी है. द न्यू PSR is 4:3:3. So can I say Sonu's share of goodwill will be what? 40,000 into 3 divided by 10, correct? It has to be 12,000. अच्छे से समझ लेना. The new PSR is 4:3:3, right? And the firm's goodwill is 40,000. So can I say Sonu's share of goodwill will be 40,000 into 3/10. 3/10 कहाँ से आया, ये अब समझ में आना चाहिए. 4 + 3 + 3 that is 10. So 3/10, क्योंकि this is Sonu's share, right? Astha, Ahna and Sonu, right? So Sonu's share is 3/10, correct? So the goodwill which Sonu should bring is 12,000, right? अब can I say, अब अच्छे से, this is the main part of the question. 12,000 में से she has brought in cash 7,200 rupees. In cash she has brought what? 7,200 rupees, right?
So can I say she has not brought in cash is rupees 4800? करेक्ट. 12,000 में से 7200 वो कैश में लेके आई है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है. मीनिंग देयर बाय द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 4800 रुपीज़ वो कैश में लेके नहीं आई है. करेक्ट. 4800 रुपीज़ इज नॉट ब्रॉट बाय हर इन कैश. नाउ इस चीज़ की जर्नल एंट्री, गुडविल की ट्रीटमेंट, पहले ये वर्किंग समझ में आ गई, राइट. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू पास अ जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री में अपना सबसे पहला रूल क्या था कि भाई कोई ओल्ड गुडविल दिखे ना तो सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सबसे पहला पॉइंट ही यही है, पहला ये काम करो. अगर ओल्ड गुडविल दिख रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. येस वी कैन सी दैट गुडविल है 8400 रुपीज़ की, राइट. तो फटाफट से व्हाट विल डू इज विल डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन old ratio. So my first journal entry would be Astha's capital account debit, Ahna's capital account debit to goodwill. Here I am writing G/W. You are supposed to write goodwill, huh? मेक श्योर यू राइट द होल वर्ड गुडविल, अदरवाइज बोर्ड्स आने तक यू विल बी सो हैबिचुएटेड विथ द शॉर्ट फॉर्म्स दैट इट विल बी क्रिएटिंग अ ट्रबल फॉर यू. क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में वो लोग आपके शॉर्ट फॉर्म्स कभी भी नहीं अलाउ करेंगे. सो यू नीड टू राइट द फुल फॉर्म्स इवन दो आई एम राइटिंग इट G/W क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ. यू आर सपोज टू राइट इट द फुल फॉर्म्स, राइट. सो 8400 है, सो इट विल बी 4200 एंड 8400. करेक्ट. दिस इज माई फर्स्ट एंट्री. ये मेरा हो गया पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. फाइन. चलो सेकेंड एंट्री. द सेकेंड एंट्री वुड बी वॉट इन कैश. कैश में जो आए गुडविल उसका क्या एंट्री करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. PFG में भी वी सपोज टू राइट प्रीमियम फॉर गुडविल. हाँ 7200 एंड 7200. करेक्ट. और यही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग्स द पार्टनर्स. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू Astha's capital account to Ahna's capital account. Now the question may arise कि मैम ये आस्था और आहना को तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था. येस यू आर करेक्ट. क्वेश्चन अराइज होना चाहिए. मैं यहाँ सीधा सीधा 1:1 कर देती और आपको पता भी ना चलता. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. वॉट आई हैव taught you in that chart of goodwill is this needs to be distributed amongst the partner in sacrificing ratio, right. So let us calculate the sacrificing ratio. Fine, I'll be writing it on altogether a new page only so that I can show that to you properly. Astha, Ahna and Sonu. Old ratio is 1:1. New ratio is 4:3:3. It has to be by 10. डिनोमिनेटर में 10 कैसे है ये डाउट नहीं होना चाहिए एट दिस स्टेज, राइट. चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. Astha's old ratio is 1/2 minus new ratio is 4/10, taking 10 as an LCM. 5 minus 4, 1/10. And Ahna's 1/2 minus 3/10, again taking 10 as an LCM. 5 minus 3 comes to 2/10. So your sacrificing ratio will be 1:2.
आई होप दिस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ 1:2 इज क्लियर. कहाँ से आया? हियर 1 एंड हियर 2, सो 1:2, राइट. चलो, तो मैं क्या करूँगी कि भाई ये जो 7200 रुपीज़ है उसको मैं अमॉन्ग्स द पार्टनर 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी. फाइन. 7200 इसको 1:2 में यानी कि 2400 एंड 4800 में आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. सो यहाँ पे इन कैश वाला पॉइंट इज क्लियर. नाउ नॉट इन कैश में क्या करना था आप याद करो. पार्टली इन कैश पार्टली नॉट इन कैश वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है. नॉट इन कैश में क्या सिखाया था? अगर तू गुडविल लेके नहीं आ रहा, जो तू गुडविल लेके आ रहा है तो मैं कैश को डेबिट कर रही हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर रही हूँ. पर जो तू गुडविल लेके नहीं आ रहा तो मैं सीधा तुझे ही डेबिट कर रही हूँ, राइट. ऐसा मैंने आपको सिखाया था. इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग द गुडविल इन कैश देन आई एम डेबिटिंग यू ओनली, ताकि मुझे पता चले कि तेरे पास से गुडविल के इतने पैसे लेने बनते थे. करेक्ट. सो माई फोर्थ एंट्री वुड बी सोनू's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800 to Astha's capital account. हाउ मच? 1:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 1600. एंड टू आहना's कैपिटल अकाउंट 3200. करेक्ट. सिंपल, वेरी इजी. सी फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज़ जब भी गुडविल का पॉइंट आए आप अच्छे से शांति से जर्नल एंट्री लिखिए, उसके बाद ही उसका लेजर पोस्टिंग करिए. ठीक है. फटाफट से करने में गड़बड़ हो जाएगी तो मार्क्स जाएंगे, और ये पूरे 8 मार्क्स का सवाल है. ठीक है. चलो, नाउ लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज. आस्था's कैपिटल अकाउंट डेबिट, आहना's कैपिटल अकाउंट डेबिट to goodwill account. So let's do it quickly. To goodwill account 4200, correct. Then the next journal entry is कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और यहाँ पे सोनू कुछ कैपिटल भी लेके आई है, तो एस कैपिटल अकाउंट इज 80,000 का कैपिटल भी वो लेके आई है ना, तो आई एम राइटिंग इट डाउन एज वेल. बाय कैश अकाउंट 80,000, सॉरी कैपिटल 80,000 का लेके आई है. देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना लेके आई? 7200. देन कैश अकाउंट में हुआ. देन आस्था एंड आहना के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2400 and 4800, correct. And then Sonu's capital account debit to Astha's capital account to Ahna's capital account. Simple normal ledger posting. Sonu's capital account में डेबिट साइड पे टू आस्था's कैपिटल अकाउंट टू आहना's कैपिटल अकाउंट 1600 एंड 3200. सोनू's कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे ऑपोजिट साइड यानी कि आस्था और आहना के कैपिटल अकाउंट्स. एंड देन बाय सोनू's कैपिटल अकाउंट it will be 1600 and 3200. See friends, ledger posting has to be clear while doing this ledger posting, right? ये एंट्री में से लेजर पोस्ट करने के लिए 11th का लेजर पोस्टिंग आना चाहिए. फिर हम ऐसा बोल के खड़े रह जाए कि भाई हमें तो लेजर पोस्टिंग नहीं आता, देन गो बैक टू द 11th स्टैंडर्ड, अगेन लर्न द लेजर पोस्टिंग एंड देन स्टार्ट डूइंग दिस, राइट. चलो, ये हो गया अपना काम. चलो अब आगे बढ़े. नेक्स्ट वॉज जो भी असेट का प्लस माइनस रिवैल्यूएशन करना है वो करो, ऐसा हमें बोला गया है, राइट, इन आवर स्टेप्स. Accrued interest on investment of 2400 is not recorded. Fine, it is not recorded. Then we are supposed to record the same. So let's record it. Accrued interest है ना, मिलने वाले हैं पैसे, right? So by accrued interest on
investments 2400 and the same will be recorded on the asset side. Accrued interest on investments as we are going to get it. Asset है अपनी 2400. चलो then accepted bills payable of 2000 which was drawn by creditors is not recorded. See friends, here काफ़ी सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि भाई 2000 के क्रेडिटर्स तो कम हो गए ना, क्योंकि बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया तो हम लिखेंगे कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ऐसा काफ़ी लोग सोचने की गलती कर देते हैं, पर हम वो गलती नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज़ हुई है, क्रेडिटर्स ने बिल्स पेबल इशू करवा दिया और हमने क्या करा, वो एक्सेप्ट कर लिया, तो क्रेडिटर्स कम हुए, बिल्स पेबल बढ़ा। करेक्ट, क्रेडिटर्स कम हो गए, राइट, क्योंकि उन लोगों ने बिल्स पेबल इशू कर दिया, और बिल्स पेबल बढ़ा क्योंकि हमने वो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करा। सो क्रेडिटर विल डिक्रीज एंड बिल्स पेबल विल इंक्रीज बाय ₹2000। कितने थे अपने क्रेडिटर्स, 12000 के थे, तो यहाँ पे वो 10000 के हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 6000 के थे वो 8000 के हो जाएंगे। दैट्स ऑल, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, तो ये गलती कभी नहीं करनी है, राइट। So here I'll be writing creditors. How much it was, again I need to check. 10,000, right? Creditors 10,000 and bills payables 8,000. So this is how you are supposed to make the effect, right? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, दैट्स ऑल। बाकी रिवैल्यूएशन पे कहीं पे कुछ भी नहीं लिखना है, ये ध्यान में खास रखना आप लोग। देन बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मेरी मार्केट वैल्यू 100 है तो मेरी बुक वैल्यू इज 20% लेस, तो कहना इसे मेरी बुक वैल्यू विल बी 80। करेक्ट, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। कहना इसे मार्केट वैल्यू 100 है तो मेरी बुक वैल्यू इज 80। करेक्ट, और 80 पे मुझे कितना दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, जस्ट अ मिनट, $40,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, राइट। तो कहना इसे लाइक दिस, आई एम रिकॉर्डिंग इट ओवर हियर, मैं यहीं पे ही लिख रही हूँ। अगर मेरी बुक वैल्यू 80 है तो मेरी मार्केट वैल्यू 100 होगी। अगर मेरी बुक वैल्यू 40,000 है तो मेरी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? करेक्ट, सो यू विल गेट 50,000. Can I say it is increase in my land and building का value? So I'll be recording it over here by ₹10,000. 40,000 था, 10,000 हुआ, so I'll be recording it over here by land and building 10,000, and the next entry will be in the balance sheet side, balance sheet asset side, land and building, it is 50,000. करेक्ट। चलो फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज ऑफ नेक्स्ट ईयर। 4800 जो हमने पे करे है वो कौन से ईयर के हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, तो अगेन वो वेयर विल बी आई राइटिंग दोज थिंग्स, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। अल्टीमेटली हमने इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपे करा है, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4800, सेम वे असेट साइड पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4800। करेक्ट, डन। चलो फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने काफ़ी आराम से ये क्वेश्चन करा है, जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको बिल्कुल भी जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है, राइट। चलो फिर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, तो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके। अब द नेक्स्ट स्टेप वॉज जो चीज़ें अनटच्ड थी उसको फटाफट से जाके बैलेंस शीट में लिख लो। क्या क्या रह गया यहाँ पे, प्रोविडेंट फंड, बैड डेट रिजर्व, ये 2 रह गए हैं।
फिर मशीनरी 32,000, इन्वेस्टमेंट्स का डन, देन डेटर्स आर लेफ्ट, स्टॉक इज लेफ्ट, कैश इज फाइन। चलो तो इतनी चीज़ें लिखनी है, फटाफट से लिख लें। लेट मी राइट इट डाउन फटाफट से। थाउजेंड and debtors 25,200. I suppose I need to check it out. Say 25,200, stock 14,400 by 200, then stock 14,400. Then over here creditors, bills, payables are done. Then what is left? Provident fund is left. So provident fund, how much it was? 6,400. And bad debt reserve is also left 8,000. Some of the students may deduct the bad debt reserves from debtors, then also it is fine. Bad debt reserve आप liability में लिखो या debtors में से minus करो, anything is okay, दोनों effect is fine. चलो तो सारी चीज़ें लिख दी हमने अच्छे से, फाइन। देन द नेक्स्ट स्टेप वॉज वॉट, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। सो द नेक्स्ट स्टेप वॉज, फटाफट से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे अकाउंट्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फटाफट टोटल करना है। इट इज 17,200, 17,200. So I'll be distributing it to Astha capital account, to Ahna's capital account is 8,600, and 8,600 as nothing is left over here. So I'll be recording it by revaluation account 8,600 and 8,600, correct. So अब क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स को टैली करेंगे फटाफट से। 80,000, then over here it will be, फटाफट से प्लस माइनस करो, आई मीन प्लस करो। इट इज 66,200 and 89,800। ये फटाफट से मैंने यहाँ पे प्लस करा है। नाउ आई विल बी डिडक्टिंग द सेम, मुझे सिर्फ बैलेंस निकालना है, करेक्ट। तो टू बैलेंस carried down, here it will be 82,000, here it will be it is 39,200 over here, suppose, yes, and here it is 75,200, right। ये कहाँ पे लेके जाएंगे, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, करेक्ट। कैपिटल आस्था was 82,000, आहना 75,200, and Sonu, sorry, ahana was 39,200 and Sonu 75,200. It has to be 196,400, correct। and then कैश अकाउंट का टोटल करना रहा अभी भी बाकी। सो लेट्स डू इट फटाफट से। इट इज 1,03,200, correct, 1,03,200 by balance carry down 1,00,000. We will be writing it over here, cash
1000 डन। तो फटाफट से आप टोटल करिए बैलेंस शीट का, सेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। It has to be 2,32,000. Here as well 2,30,000, राइट। सो यहाँ पे हमने एक काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करा, जिसमें हमने काफ़ी सारे आज नए पॉइंट्स देखे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का इफ़ेक्ट देखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इफ़ेक्ट देखा, गुडविल में पार्टली इन कैश पार्टली नॉट इन कैश का इफ़ेक्ट देखा, राइट। so this is how you are supposed to do the question. I hope you are clear with question number 9. आप शांति से अच्छे से इसको पॉज करके प्रॉपरली लिख लेना अपनी नोटबुक्स में, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द अदर सम्स, फाइन। so this is how you are supposed to make all this 4 accounts. Thank you.